खैर है बिस्मिल्लाह सोच लेंगे जब सवाल आएगा लाइव है Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah everybody who's turned in for this podcast, which is a joint podcast by Naseeha and Hikmah Institute. Alhamdulillah, we're sitting here in Karachi and I am joined by Moin Mahmood to my right side and मेरे left और सामने जो है खिजर और शादिब बैठे हुए हैं. And those of you who've been following our institutes or channels know that like last year, Alhamdulillah, Hikmah has been very kind कि हम लोगों को इन्होंने दोबारा एक collaborative conference पे बुलाया which is Enclaved 2.0 this year, and tomorrow inshallah we are going to be at the conference, and the idea tonight was to sort of sit together and have a small podcast जहाँ हम कुछ दीनी questions और कुछ अपनी journeys और कुछ experiences को share कर सकें. And I want to sort of begin with Khizr. Assalamu alaikum Khizr, क्या हाल है आपके? Khizr, I want to start with you. You were obviously my batch at LUMS and I've known you since then. Once upon a time you were my senior. I still take that. And क्या कहते हैं माशाल्लाह मुझे याद है जब दीन पे नए नए आने की कोशिश कर रहे थे तो you had a lot of energy, drive, where you would sort of encourage us to come to bayans and do little things. And I still remember you having lists of people and trying to run around कि इस बच्चे को पकड़ना है, इसको ऐसे करना है. But then after some months I found out that खिदर की पहले की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती थी, इतनी अजीब कि मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता. What I want to really ask you on a serious note is the fact that how did that transition take place? I mean everybody has a story of change, not getting into the specifics, but क्या एक चीज़ है जिसको आप point out कर सकते हो कि यार इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा help किया, ये चीज़ जो है ना मेरे लिए एक push बनी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी when you look back at all these years. अस्सलाम वालेकुम. सवाल असल में when we started जो मुझे समझ आया ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही थी कनेक्टेड इट वाज द सोहबत ऑफ आवर फ्रेंड्स. मस्जिद में जाके जुड़ते थे, आप जुड़ते बाकी लोग शुरू में हम जब मस्जिद में गए हम मस्जिद में तो तजर्बा गए थे मस्जिद में जाके देखते हैं क्या होता है कैसा माहौल बनता है. मगर ओवर टाइम आई रियलाइज कि वो जो सारी इश्यूज है ना लम्स का एजुकेशन प्रेशर, स्टडी प्रेशर, पीयर प्रेशर, वो सारी चीज़ों से एक हद तक मैनेज करना या अपने आप को बचा के चलाना वो प्रीटी डिफ़िकल्ट. मस्जिद में जाके जुड़ने से एक फ़ायदा हो गया, एक अच्छी चीज़ होगी कि वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद से जुड़े और जुड़ने के बाद उधर से ही धक्का लगना शुरू हो. ओके, आई वुड से इट वाज जस्ट द माहौल व्हिच ड्रोव मी अवे एंड इट वाज इन द माहौल व्हिच गॉट मी कनेक्टेड विद द पीपल. ठीक है. But I want to ask another further thing on this, that people who make it to the masjid, who make it to Umrah, who make it to maybe Hajj, and sort of get time to really see the beauty of Deen, a lot of them, alhamdulillah, can then at least realize कि हक कहाँ है. But what sort of pushed you to getting to the masjid? यानी कोई दिल टूटा था या कोई और परेशानी थी, या जैसे कहते हैं ना कि on a serious note कि इतनी गुनाहों की ज़िंदगी से बेसुकूनी थी, या किसी ने मशवरा दिया कि नहीं you should try it one time, and that how did you take that first step? In all honesty, there was a friend. Long story short, there was a friend who passed away. That was the starting point. I will say. And this is Ajib, death is a sort of ibrat for all of us, and so many of us, when we see somebody beloved leave us, it reminds us of the fragility of life and go. Okay, so Shazib sitting in my front, जो हमेशा एक बड़ी सूफी हालत में माशाल्लाह बैठा होता है. He is the heart of Hikma Institute, माशाल्लाह, the heart of Karachi, and I think people here have tremendously benefited from his lectures, from his talks. असर तो अल्लाह ताला की बात में होता है. शायद खैरियत से आप. अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. My question to you is that obviously you had your own journey, and in that journey I know that ilm has played a significant part. But you were interesting. I know Khizr is in the same boat, but Khizr की इल्मी इस्तेदाद मुझे पता है. So because कुछ पेपर मैंने इसके भी देखे थे जब हम साथ पढ़े थे. But how did you sort of transition from being this, I don't know, maybe a burger Karachiite, and then going on to do madrasa, 8 साल दरस निज़ामी part time से आपने शुरू किया, and then something that, for example, if I was to take anything from your life, अगर मुझे मौका मिले जो आपका जो आखिरी साल full time हर चीज़ छोड़ के दारुल कराची, people like मुफ्ती तकी उस्मानी and others उनकी सोबत में बैठ के हदीस पढ़ना, how did that happen, and उसकी आप क्या significance देखते हो in terms of the role that ilm plays when one comes towards deen? अच्छा, इसमें यह है कि इल्म के हवाले से दिस थिंग यूज्ड टू एक्चुअली डिस्टर्ब मी अ लॉट, इवन दीन पे आने से पहले भी. हमने एक चीज़ देखी थी कि इल्म इज़ मोस्टली फॉर दोज पीपल जो कि फुल टाइम कर लें जाके. आई मीन हमारे लिए इल्म जो था
इट वाज मैक्सिमम क्या फ्राइडे जुम्मा खुतबा हो गया इमाम साहब का, इमाम साहब से कुछ बात कर ली, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे हिट करती थी, ठीक है, कि ये क्या है, आई मीन मैं क्यों नहीं हदीस पढ़ सकता या कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे हिट होता था। अब ज़ाहिर है दीन का बैकग्राउंड था नहीं, फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह का था नहीं, तो ये बस चीज़ हिट होती थी, लेकिन वो दोबारा से एक डेल्व हो जाती थी। सो व्हेन जब मैं लम्स में ही ज़ाहिर हम सब साथ ही थे, वहाँ पे जब दीन के ऊपर थोड़ी समझ आना शुरू हुई, एंड दैट एक्चुअली केम फ्रॉम इंस्पिरेशन, जैसे खिजर साहब ने पूछा ना कि व्हाट वाज हिज थिंग, तो वो एक इंस्पिरेशन आई। मैं थोड़ा ऐसा ऐसा बंदा था जो मैं इंस्पायर जल्दी हो जाता था लोगों से, आई मीन अगर अभी भी ऐसा ही है अब अच्छी तरह के पहले शायद नहीं तो पहले मुझे याद है आई वाज अ फ्रीक ऑफ टेनिस, ठीक है, तो नडाल से इंस्पायर हो गया। मूवीज का मैं बड़ा शौक रखता था, ठीक है, उसमें खिजर का बड़ा हाथ होता था, लेकिन चले तो इंस्पिरेशन बहुत जल्दी हो जाती थी। तो यही चीज़ मैंने फील करी लम्स में। हमारा एक बड़ा कॉमन दोस्त था, ठीक है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर होता था क्योंकि वो टेनिस बहुत अच्छी खेलता था, ठीक है, आप सबको पता होगा कौन है, ठीक है, एंड उसका बड़ा सडन चेंज आया था। एंड फॉर मी लुकिंग एट द पर्सन जो कि एक मेरे नज़दीक, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स के एपिटोम पे पहुंच गया है, ठीक है, जितना हम पहुंच सकते थे ऑब्वियसली, ठीक है, और फिर एकदम से ही केम इनटू द दीन पार्ट, ठीक है, तो दैट वाज ट्रूली इंस्पिरेशनल फॉर मी। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आई मीन ये क्यों हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट चेंज्ड मी। और फिर उसके बाद से दिस थिंग केम इनसाइड ऑफ मेनी ऑफ अस, ठीक है, मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा कि ये इल्म क्या चीज़ है। आई मीन फजाइल इल्म हमने बहुत पढ़े हैं, इल्म फरिश्ते पर बिछाते हैं, चरिंद परिंद दुआएं करते हैं, तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मिल सकता, किसी को क्यों नहीं मिल सकता। सो वहां से एक इल्म की एक सबके साथ ही मिलके एक थोड़ी सी इट स्टार्टेड, द जर्नी स्टार्टेड। और वो फ्रैंकली स्पीकिंग कभी नहीं सोचा था कि हमने इस तरह हदीस पढ़ रहे होंगे, दारुल में पढ़ रहे होंगे मुफ्ती तकी साहब के साथ, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहीमुल्लाह के साथ, कभी नहीं सोचा था, फ्रैंकली कभी नहीं सोचा था ये। लेकिन इल्म की जर्नी की यही बरकत है। तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी लिटिल स्टेप, थोड़ा 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 करके स्टार्ट हुआ। क्योंकि शुरू में अगर ये सोच लेते ना कि यार दौरे हदीस और दारुल, तो बिलीव मी शायद पहले साल के पहले महीने में ही भाग जाते यार, ये हम कैसे कर सकते हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट। वहां से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीन, ठीक है, कि थोड़ा करो लेकिन रेगुलर करते रहो। सो बस ये स्टार्ट हुआ तो बस And I थोड़ा think सा from what I remember, because you started doing part-time in third year of LUMS, if I'm not wrong, right? And that means that you're looking at your graduation at that point in time. And if somebody tells you कि यार ये एक नया कोर्स शुरू कर रहे हो, ये 8 साल का है, so there is this thought कि 8 साल कब खत्म हो सकते हैं। And then it's amazing that how Allah subhanahu wa ta'ala 8 साल तो उधर ही रहते हैं, but जो बरकत है, यानी your Allah Ta'ala creates space, right? And that's something that a lot of people should not look at the span of things. They should just sort of look at the fact that we want to begin the journey, and Allah Rabbul Izzat then He accepts it, so it's amazing. इसमें होता ये नॉर्मली जो हमने भी देखा है ना, और हमारे साथ भी हुआ। 8 साल का जब सफर शुरू कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम 8 साल पे फोकस नहीं होता। शुरू कर लेता है बंदा ना, तो उसके बाद 2 महीने में रियलाइज हो जाता है कि 8 साल इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल शुरू करना। When you say this, I remember we sitting in the masjid and you telling me the same thing कि 8 साल नहीं पूछना, बस शुरू कर दो। And I'm saying 8 साल शुरू कर दो। What in the world is this guy saying? अभी भी ये कहता हूँ। So माशाल्लाह। अच्छा, Moin to my right. Assalamu alaikum, Moin. Jazakallah khair for coming to Karachi. I think for the first time ever. With the niyat of deen. With the niyat of दुनिया के लिए तो मोइन आता रहता है। So Moin, I've known you for years and years, fortunately or unfortunately. And one thing that I sort of remember about you, mashallah, is the fact that you've always been a topper, right? In terms of academics, in terms of Allah Ta'ala giving you the capacity and the capability to excel at studies, like being in the top 0.1%, I'd say. How do you sort of, how did you manage to balance? Because एक बंदा जो इतना nerd freak है, right? उसको अचानक आप दीन सोच देते हो, तो then he's spending more time, with sohbat, with ilm, with madrasa, with khidmat of deen. तो वो कैसे, वो एक challenge था, नहीं था? And I'm asking this because a lot of people have this fear कि जो लोग excellence की तरफ होते हैं दुनिया में, उनको एक OCD ये भी होता है कि नहीं यार, हम अगर दुनिया पे आएंगे ना, दीन पे आएंगे, तो हमारा वो जो सारा कुछ है बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, मैं उसमें meticulous तरीके से अपनी जॉब नहीं कर सकूंगा। How did somebody like you pull that off? I think दो चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं कि जब आप परफेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो मुझे याद है जब मैं अब लम क्या था, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एडमिशन टेस्ट के लिए लाइन में खड़े हुए थे अपने एलजीएस के दोस्तों के साथ, सो आई सॉ जस्ट वन पर्सन जो कि अकेला दाढ़ी में था और वो नजरें झुका के खड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक ये कौन है, ये कैसे मुमकिन है कि ये लम्स के अंदर हो रहा है। तो एक तो वो पार्ट है कि जिस तरह इंस्पिरेशन आपको दुनिया होती है, उसी तरह दीन भी आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। और एक चीज जो दीन पे आने के बाद समझ आई कि असल चीज डिसिप्लिन है। मेरे एक उस्ताद थे, उनसे हम पूछा करते थे
कि अगर आपकी बहुत सारी कज़ा नमाजें रहती हों तो उस कज़ा पे फोकस करें और उसकी वजह से हम सुन्नतें छोड़ सकते हैं, नफल छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त नमाजें कज़ा हो रही थी ना, तो जिस जगह टाइम दिया था ना, टाइम वहीं से लेना है। सुभान अल्लाह। तो मसला ये होता है कि जिस वक्त आप दीन पे आते हो तो एक चीज आपको रियलाइज होती है कि वो जो है ना कि आपकी फजूलियात कट डाउन होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दुनिया इफेक्ट हो रही है। आई डोंट रिकॉल हम में से जिन्होंने भी इल्म शुरू किया था उनका जीपीए कहीं इल्म की वजह से नीचे गया था। हाँ माशाल्लाह, जो ऐसे ही मुतीब रहमान जैसे अगर आपने नहीं पढ़ना तो आपने नहीं पढ़ना, बट आई थिंक वो जो आपका फजूल टाइम है वो कट डाउन होना शुरू हो जाता है और उससे आपके पास बहुत टाइम और निकल आता है जिसको आप अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट्स लेस टू डू विद कि आपने दुनिया छोड़कर दीन करना है, इट्स मोर टू डू विद कि वो बैलेंस आपने अपनी जिंदगी की फजूलियात से निकाल के discipline and leaving Exactly. the wrong things. That I think makes sense. Okay, so one thing that obviously all of us share is that we come from backgrounds जहाँ बहुत ज़्यादा दीन से association नहीं थी, right? Irrespective of how our parents or families were, but at least individually तो नहीं थी. Very quickly, all of you one by one, starting with Khizr, what is one perception that sort of radically changed or was broken once you came to the deen, या started sitting with people who were more concerned about deen? यानी कोई एक ऐसा perception दीन के बारे में जो आपने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था, but then you realize कि नहीं यार मैं गलत सोचता था. एक अजीब सा परसेप्शन था कि जो दीनदार बनेगा उसके बाद जिंदगी में और कोई काम नहीं होगा. बिल्कुल ही इन द सेंस हम बाजारी लैंग्वेज जाहिल होगा, ठीक है. परसेप्शन था. फिर हम जब दीन पे जुड़े तो हमें नजर आया कि अब वो आईबी ग्रेजुएट भी आया हुआ है इधर ही, इसी हुलिये में ये वगैरह काम कर रहा है और PhD स्कॉलर भी आया हुआ है, सभी कर. So the dunya is not taken away अगर आप दीन पे आए, right? So it doesn't deter you from sort of excelling in the dunya. So that's one thing. Those who have achieved a lot in the dunya are on this path. So if they are on this path, they may be, ठीक है. So I think a lot of people वो masses को देख के किसी वजह से emotion exist करता है, तो वो एक चीज टूटा. I think definitely it is true and it helps as well. Shahzad, what about you? मेरे लिए ये था कि बिफोर कमिंग टू ऑन दीन कि अल्लाह ताला से कनेक्शन बन ही नहीं सकता इफ़ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड. ठीक है, वो बन ही नहीं सकता कभी. अगर बनाना है अल्लाह ताला से कनेक्शन तो किसी भी तरीके से अल्लाह ताला से कनेक्शन, सुन्नत से कनेक्शन. ठीक है, इट्स नॉट दैट आई वाज डाइंग टू गेट द कनेक्शन उस टाइम, लेकिन एक मुझे होता था कि यार ये तो हो ही नहीं. फॉर दैट चलो भाई किसी मस्जिद जाओ, किसी के साथ फुल टाइम लगाओ. तो वो परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है दीन पे आके. नहीं यार, स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड, वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, I mean doing everything in this world and then also getting Allah Taala. I mean ये बिल्कुल killer चीज थी मेरे लिए. So you saw these as two mutually exclusive. Mutually exclusive जी, जो genuinely होता है ना दीन दुनिया साथ साथ, वो मुझे वाकई में फील हुआ कि यार ये तो वाकई साथ साथ हो सकता है. ठीक हो गया. And Moin, what about you? I think LGS के 6 दोस्तों के साथ इकट्ठे लाउंज में आने के बाद एक परसेप्शन थी कि जब आप दीन पे आ रहे हो ना तो वो सोशलाइजेशन खत्म हो जाएगी, आपके दोस्त नहीं रहेंगे एंड देन इट्स जस्ट लाइक लेट्स गो इट अलोन. आप बस मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह कर रहे हो. लेकिन इतने इनफैक्ट एक्सपोजर दीन पे आने के बाद ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोगों को जानना शुरू हो गए. सो वो वाला जो पार्ट है ना कि बस दीन पे आने के बाद आपकी सोशलाइजेशन हो नहीं सकती है या आप एंजॉय कर नहीं सकते. शायद गुनाह छोड़ना है बस, लेकिन a lot of that still continues अगर आपको अच्छी सोबत मिल जाए, आपको अच्छे दोस्त मिल जाए जो आपके साथ उस सफर में चल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, so that's I mean all of you have addressed I think things that other people still have as fear. And it's like people are looking for role models जो उनको मिल नहीं रहे होते हैं. जहाँ लोगों की perception टूटती है तो मैं नहीं समझता लोग दीन से opposed हैं. The reason that we gathered in Karachi this week is because we are trying to host a conference. You guys are hosting a conference and have been kind enough to put our name and invite us as well. अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे. हम भी इंशाल्लाह कभी लाहौर बुलाएंगे. इंशाल्लाह. We've been trying for about 2 years. Last year. For about 2 years. खैर on that यानी conferences, religious conferences of this nature, topics of this nature are still new to the Pakistani religious community, right? You might see a lot of them in the US, UK, Europe, maybe किसी ना किसी हद तक हो रहा है. So this is more of a bid'at hasana, I would say in technical terminology. So it's a good thing, right? What is your understanding again? Because if we want to make the deen more relatable, if we want to sort of break these perceptions that people have about deen, what is it that we have to do? Are we there now? मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ. जिस सर्किट में हम लोग मूव कर रहे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी यूथ क्राउड जो कि अगेन हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे छोटे हैं, हम उनको गिव अप नहीं कर सकते. कोई सेक्युलर अपने आप को समझे, लिबरल समझे, जो भी समझे, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ बिलीवर, ही इज एन उम्मती ऑफ द प्रोफेट. सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस थिंग आल्सो कि हमें ना यूथ की अब जो लैंग्वेज है ना वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है अब. ठीक है, यूथ की जो वेवलेंथ है ना उसके साथ मैच करेंगे तो शायद हम उनके साथ अटैच कर पाएंगे अपने आप को. अगर उस वेवलेंथ पे हम नहीं आएंगे ना
तो आज का जो बच्चा या बच्ची है वो आपको सुन तो लेगा, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। उस एक्सेप्टेंस के लिए वेवलेंथ मैच करना ज़रूरी है। और ये जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ना, आई मीन नॉन इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस पे अगर जाएं, ठीक है, जिसको आप कुछ भी कह लो, जो कॉन्सेप्ट कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, इन वट एवर सेंस, ठीक है, वहाँ पे वो क्यों अटैच होता है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ में बात हो रही है, ठीक है, आई मीन दे कनेक्ट टू इट, ठीक है। तो ये कनेक्शन वाला पार्ट हम उनके अंदर मौजूद है, वो कनेक्शन उसी तरीके से आएगी, ठीक है। और ये कनेक्शन आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, स्पीकिंग ऑन टैबू टॉपिक, स्पेशली जिन टॉपिक्स के ऊपर आई मीन आम मस्जिदों में बयानात में बात नहीं होती, उन टॉपिक्स पे बात करना, दैट इज व्हाट्स मिसिंग राइट नाउ। और थ्रू दिस कॉन्फ्रेंसेज मैं समझता हूँ जस्ट द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ इन दिस डे एंड एज, ठीक है। इसके थ्रू वी नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर ऑप्शन एंड स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये आपका वो वेवलेंथ मैच करवाएगा यूथ के साथ, जो वो वेवलेंथ शायद अब जरूरी हो गया, और हिस्टोरिकली इट्स बीन मिसिंग आल्सो अ लॉट। आई थिंक इसको बड़ा जरूरी है समझना कि जब हाँ। आप कुरान में दावत के पर्सपेक्टिव को समझते हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर कौम को नबी भेजे गए जो अहले जुबान होते हैं, और वो उन्हीं के कल्चर में से उन्हीं में से उठते हैं और फिर उनको जबरदस्त पॉइंट ट्रैक पे वापस लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना डिस्कनेक्ट हो गया हमारे ट्रेडिशनल उलमा में। इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट सेइंग द राइट थिंग्स, बट आई थिंक इट्स लैंग्वेज कल्चर, उसको रेलेवेंस बनाने के लिए आपको यूथ के पास जाना है, रादर वेटिंग कि मेरे पास सही चीज है, यूथ खुद मेरे पास आए। तो आपको बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, और उनको उसकी तरफ, दीन की तरफ दावत दे। ठीक है, एक बार पहुंच जाते हैं ना, तो मैंने देखा एक बार पहुंच जाते हैं, इट्स नॉट लाइक वो जो बीच में बॉल खड़ा हुआ था वो बचा रहता है। वंस यू आर एबल टू गेट टू देम और यू आर एबल टू रीच देम, दे आर वेरी रिसेप्टिव एंड accepting and appreciative of what you're doing. It's all about, like Shazib said, na, meeting the wavelength or connecting with them at a level where, you know, where they connect with the singer on in a concert. ठीक है। अच्छा, how the three of you, do you realize the fact that, I mean, we continue to speak about the youth. Shazib spoke about the fact कि हमें उनकी language बोलनी है, right, सब कुछ करना है, but increasingly we are all aging as well, right? यानी Moin I know is about to reach 40 and क्या कहते हैं, I may be the youngest here, but हम सब यानी in every sense of the word, the point is that हम खुद भी एक generation अलग हो गए, right? And at times we look at things which are very normal for the generation that's doing O levels right now, and we are 15-20 years old now, right? So what are you guys doing in terms of, you know, bringing in the next generation of speakers, people who are more relatable? In 5-7 साल में तो कोई देखना भी नहीं जाएगा शायद को अपने white टोपी के साथ. So that's and that's specific to the fact, you know, both of you, Khidr and Shazib, obviously are working day and night other than your professional work in sort of setting up Hikma Institute. So what's the central idea behind that? Are you trying to give good role models? Are you a दावा organization? आपको क्या करने की कोशिश करेंगे? अगर आप थोड़ा सा ये बता सकें. And thought behind क्या है? देखिए, मैनेजमेंट, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट का ही स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम सबको पता है, सक्सेशन प्लानिंग का। और कोई भी काम हो ना, कोई भी मेहनत हो, कोई भी काम हो, कोई छोटा सा भी ऑर्गेनाइज, इफ देयर इज नो सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, तो इट्स बाउंड टू फेल। 5 साल बहुत अच्छा चलेगा, 6ठा साल वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यही अप्रोच हमने दीन में भी लगानी है और लगाई हुई भी है हमने हिकमा में, ठीक है, एटलीस्ट ट्राइंग टू, कि सक्सेशन प्लानिंग हो। अभी भी मैं आपको बताऊं, अब जो हमारा मेन अभी जो खिदमत की हमारी टीम है ना, ठीक है, हमारी जो हिकमा इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट टीम जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मी, खिजर, साद जाफरी भाई एंड एवरीवन, ठीक है, इट इज़ प्राइमरीली दीज यंग बॉयज जिनको हम जेन जी कहते हैं, ठीक है, उनके थ्रू एग्जीक्यूशन करवाना, उनके थ्रू चीज़ें करवाना, एंड ट्राइंग टू गिव देम द ओनरशिप, मेकिंग श्योर कि वो लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि जेन जी हमारे जो है ना, उसका एक बड़ा थोड़ा सा मसला ये भी कि लिमिट्स थोड़े जल्दी से क्रॉस हो जाते हैं, विच इज़ फाइन फॉर देम, ठीक है, विच इज़ फाइन। तो इसको उस लिमिट के अंदर लाना और उनके थ्रू चीजें करवाना, आई थिंक ये बहुत जरूरी है, रादर देन मैं जंप इसलिए कर रहा था क्योंकि जेन जी, हाँ नहीं वो बात ठीक है, असल में द होल डील इज, वो जो शाज़े बात कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, ट्रेनिंग द न्यूअर जनरेशन टू एक्चुअली remain within the tradition yet be in this post modern current 21st century 2023 का जो ज़माना है ना, उस ज़माने में रहते हुए they should not disconnect from the tradition or the usul or the ज़वाबित or the restrictions, all the limitations that are there, और उसकी ट्रेनिंग देना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, because once if they go beyond that limit which is permissible na, so then there is no stopping. That is the whole thing. अच्छा, so to interesting, you sort of said कि making them stay within the limit and then sort of, you know, making, so you've defined boundaries and then you're working around that. So I mean, to address the elephant in the room, Hikma और Naseeha की भी अपनी limits हैं, and we've sort of spoken about that at length.
in a very sort of positive manner, because obviously we Up share till now. क्या कहते हैं, हाँ, Up till now. क्या पता अगले साल despite, क्या नया plan है? despite the controversy, so I want to shift the gaze to Moin in terms of saying that where do you think sort of Naseeha is heading, and क्या वो चीज़ है जो यूथ के लिए ज़रूरत है और हम किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आई कितना थिंक हो रहा है नहीं हो रहा. एक ट्रेडिशनली प्रॉब्लम ये है कि जब आप दावत की बात करते हो ना, तो वो आप सिर्फ मेंबर से एसोसिएट करते हो और आप कह रहे हो कि ये फॉर्मल दावत का प्लेटफॉर्म है और अब आपने उसके लिए तैयार करना. आई थिंक वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दैट, और हमने नसीहा पे इस पे काम शुरू किया है, एंड दैट इज लाइक यू नीड टू इन्वॉल्व किड्स ऑफ एवरी एज. तो अगर आपने इस वक्त टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम करना है तो शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन, जस्ट बिकॉज कि मुझे दीन की समझ है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके इशूज़ को एड्रेस भी कर सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ. या आपने उससे भी यंगर क्राउड को एड्रेस करना है, तो आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना है. चाहे वो आप वेस्ट में देखो संडे स्कूल का कॉन्सेप्ट है, या आपके टीनेज प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप उसको खेलने का मौका भी दे रहे हो शरिया कंप्लाइंट एनवायरनमेंट में, और साथ साथ आप उसको ना सीरत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो या कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो. एंड इवेंचुअली आई थिंक जो सोल्यूशन है वो दैट इज यू नीड टू गिव होल फैमिली काइंड ऑफ सोल्यूशन. आज मसला ये है कि आप लेट्स से अगर हस्बैंड दीन पे है और वाइफ नहीं है या बच्चे नहीं हैं, तो आपने मेरे ख्याल से सोल्यूशन अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है. जिस तरह आपके जो नॉन रिलीजियस लोग हैं उनकी एक अपनी कम्युनिटी है, सो यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी व्हिच इज विद इन द रिलीजन एज वेल, जहाँ पे पूरी कंप्लीट फैमिली के लिए सोल्यूशन है. जैसे हम आप वेस्ट में सोचते हैं ना कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पे प्ले एरियाज भी हैं और वो भी है. सो आपका सेंटर ऐसा होना चाहिए व्हिच इज इंक्लूसिव फॉर द एंटायर फैमिली. बच्चा आके जो 7 साल की उम्र का है वो बेचारा 2 घंटे का बयान नहीं सुन सकता, ना ही वो प्रॉब्ली कल जो वर्कशॉप है दैट्स लाइक 5 घंटे के लिए तो वो नहीं कर सकता ना. तो उस सेंस में उन सबको केटर करना और उनको दीन की एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना, मेरे ख्याल से ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होने की बहुत जरूरत है. ठीक है, तो आई डेफिनेटली आई थिंक वी नीड लॉट मोर इंस्टीट्यूट. माशाल्लाह बहुत सारे और इदारे हैं भी जो एक अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं. दैट्स आई बिलीव द ब्यूटी ऑफ दीन के अल्लाह ताला हर एक को स्पिरिचुअल रिस्क भी उसके मिजाज के मुताबिक काम कर देते हैं, as long as one is on the haq में अल्लाह guide everybody. On that, another question that sort of comes to my mind is कि जब हम दीन के काम को देखते हैं, ठीक है, उसकी हम डेफिनेशन एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और हम कहते हैं कि हमने उसको सॉल्व करना है. What should your approach be, right? What do I mean by approach? What I'm trying to say is this कि आप कैसे जो है ना उसको, यानी are you somebody जो कि apologetics की तरफ चला जाएगा, ठीक है, कि आप बस एक बिल्कुल watered down version of दीन की तरफ जा रहे हो, या एक माइल्ड स्कूल हो गए, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कुरान सुन्नत से ऑर्थोडॉक्स चीज उठाएंगे. एंड इसमें भी अक्सर लोग जो ना, होता क्या है कि इससे एक डाइवर्स ओपिनियन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लोग परेशान भी होते हैं कि नहीं एक्स इंस्टीट्यूट एक्स स्कॉलर ये बात कर रहा है, वाई ये कह रहा है, इसने ऐसे कर दिया है, फलाने की कॉन्फ्रेंस पे सेग्रीगेशन थी, इस पे ऐसी चीज़ नहीं थी, ये वो थी. अब आई थिंक विद इन पीपल ऑफ इल्म लोग इस पे इतना परेशान नहीं होते बिकॉज दे अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी. हाउ डू वी एजुकेट आवर यूथ अबाउट दिस पार्ट कि वो पाकिस्तानी जनरेशन जनरली 0-1 पे होती है. वो पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है, क्रिकेट में भी ऐसा ही है, एक दिन एक हीरो है दूसरे दिन जीरो है. तो वो दीन में ये प्रॉब्लम इसलिए फिर सिवियर हो जाता है कि इंसान का ना फिर दिल हट जाता है. आप लोगों के एक्सपीरियंस में इसका क्या बेहतर तरीका हो सकता है हमारे एंड से, एज यू नो स्पीकर्स और एज पीपल जो कि टाइम्स यूथ से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कि इसको कैसे वो मेच्योरिटी कैसे लाई जा सकती है? देखिए इसके अंदर व्हाट आई फील यूथ से थोड़ा इंटरेक्ट करके और लोगों के जिस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे मेंटरशिप के अंदर, देखें एक चीज़ है जो हमारी यूथ थोड़ा सा मसला हो जाता है, वी ऑलवेज टेक और ट्राई टू टेक द डिफेंसिव पोजीशन. ठीक है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा जो दीन है वो बरहक है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फाइनल परफेक्ट पर्सन, द मोस्ट परफेक्ट पर्सन. हम लोग जो डिफेंसिव चले, जैसे एथिज्म का बड़ा मसला है, ठीक है, हमारा जो बच्चा है जिसको ये मसला भी नहीं है वो डिफेंसिव पोजीशन पे चला जाता है. अच्छा हाँ आप सही कह रहे हैं, अच्छा चलें ठीक है मैं बताता हूँ, अच्छा मैं पूछता हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कम आउट ऑफ. ठीक है कि नहीं, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, हाँ मुझे शायद उसके रैशनल जवाब नहीं पता, हमें रैशनैलिटी इतना हमारे ऊपर वो हो चुकी है कि रैशनल जवाब हमारे यूथ को नहीं पता. ठीक है, तो दे टेंड टू फील कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, अच्छा मैं देखता हूँ पता करता हूँ. ये बड़ा मसला होता जा रहा है और ये मसला इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, आई मीन ऑन इवन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड हम लोग मानते हैं, सब मानते हैं, हमें लड़के मानते हैं फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे, लेकिन उनसे कोई पूछ ले अच्छा क्या रीजंस हैं, फॉरेन डिफेंसिव, अच्छा मुझे पता नहीं, अच्छा हाँ आप सही कह रहे हैं मुझे पता होना चाहिए. ये बड़ा मसला है. देखिए हमारा असल चीज़ है ईमान बिल गैब, वो गैब का ईमान है, इसी वजह से हमें नहीं पता. एवरीवन वोंट हैव आंसर्स टू एवरीथिंग. ठीक है, लेकिन आज इतना क्योंकि हमने इंटेलेक्ट को और रैशनैलिटी को इतना हाई रख दिया है,
कल स्लेयर में इसी पे थोड़ी बात होनी है, ठीक है। इसको इतना हाई रख दिया गया है कि अगर किसी को ये नहीं पता तो तुम्हारा तो दीन पे आने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम क्या मानते हो तुम। तो डिफेंसिव अप्रोच से निकल के हमें वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट लाइक द अप्रोच ऑफ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, जो तलवार लेके चले गए थे। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुसलमानों का नमाज पढ़ने से, ठीक है। और थोड़ी बट आई थिंक आई एग्री प्रिंसिपली कि ये जो है ना कि हमेशा इस्लाम को आप अटेरे पे खड़ा करते हो, इस्लाम इज ऑप्रेसिव टू women. एग्जैक्टली, हाँ सही है। Now I'm trying to हाँ justify कि नहीं जी, we are not oppressive. हाँ Go ask my wife and एग्जैक्टली, look at the बिल्कुल women सही। in my family and just sometimes you need to challenge them on their grounds, हाँ like where they're coming from. और फिर अच्छा, उसी को address okay, किया जाए. so that this can be an entire topic because हाँ as okay, you people have questions related to Islam, right? Another aspect of this is this: a lot of these questions might be genuine, but even when people get answers to these questions, doesn't take them anywhere spiritual, right? हाँ Deep down they realize कि यार मेरे और fears और और problems हैं, and we've come through that journey, we understand that. मैं आप लोगों से अलग अलग जो है ना, I feel there are three things that I can identify में एक एक करके पूछता हूँ, right? Khidr, I want to begin with you. That one fear that people have, or one thing that stops them, or at least deters progress, is the opposition that people receive from family, whether that is parents or for married people, spouse, or maybe for somebody, children. How do you think that can sort of be balanced? Ke, what if you're trying to come on deen, but your dad doesn't allow you? He's upset with the fact कि आपने दाढ़ी रखने का सोच रहे हैं, आप निकाब हिजाब का सोच रहे हैं, आप मस्जिद ज़्यादा जाना शुरू हो गए, you're attending some halaqah. How do you balance that? I don't know if you had that as a coming up or no. मेरे हाँ, in all honesty, you have to first and foremost you have to get educated on deen or get connected to someone who knows more about the, आप समझ रहे हैं, कहने को तो गलत बात हो सकती है, more about गुंजाइश और लचक इन, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दीन के बारे में अजम्पशन लेते हैं कि दीन पे आने के लिए ये करना तो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने कुर्ता शलवार पहनना ज़रूरी है, मैंने टोपी रखना ज़रूरी है, मैंने ये करना ज़रूरी है। अगर हम वो चीज़ें पहले आइडेंटिफाई कर लेना यार कौन सी चीज़ है which will probably cause a problem with my mom and dad and which I may be allowed not to do right now, which I do not need to do at the moment. अगर वो आइडेंटिफाई कर लेना, सबसे पहली चीज़ होगी you identify those and you follow deen leaving that, so that एक तो जो अब्बा से आपको डांट पड़नी है ना वो कम से कम पड़े to start off. जो ज़रूरियात हैं, जैसे हमें भी सिखाया गया था ना, सबसे पहले ज़रूरियात देखी जाएँ और ज़रूरियात पे अमल करने के बाद हल्के हल्के करके जो मुझे समझ आए, इन ऑल ऑनेस्टी because I come from kids, I've seen over the years, if you are good to your parents, right, or and if you are good to your wife, it does not matter how big a Maulvi or how dindar you become, right? It's all about how good you are to the other person, and it eventually changes them. So you're saying What you do akhlaq like is at the center, absolutely, and a at lot the of people center. tend to lose that because they sort of start hating their own family because the opposition are is there. And they तो आप become उसको वो करें, too and rigid on parents deen. और spouse का जो fear है वो with time alleviate हो जाता है, वो चला I think जाता I है. just like to add rigidity to निकल that जाए कि ना अमल में। the real fear the parents have is not कि बच्चा नमाजी हो गया या बच्चा दीन का लिबास पहनना शुरू हो गया, it's about the दुनिया as well. और unfortunately वो शायद पहले भी निकम्मा ही था, वो पहले भी नहीं पढ़ा था, वो पहले भी सेटल नहीं था, but it becomes more pronounced जब वो दाढ़ी टोपी के साथ आना शुरू हो गया, तो एक वो मसला हो सकता है। और अगर आप अपनी उनका वो वाला फियर हाँ इसके इससे पहले कि तुम कुछ को मैं सवाल पूछ लूँ. नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं बस। So my question to you is moving forward because time is less. That हाँ what about friends? Like the peer pressure, even girlfriends, right, or boyfriends for that matter. ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा deterrence होता है, ठीक है, वो जो आपको रोकता है, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Because और इस पे तो a lot of people have this perception कि मैं दोस्त कैसे छोड़ूं? क्या उनको छोड़ना है, नहीं छोड़ना, वक्ती तौर पे छोड़ना है? देखें, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, गलत परसेप्शन है कि मैं दीन पे आ गया तो मैंने दोस्त छोड़ देने, ठीक है। देखें, एक तो पहली बात है कि दोस्ती छोड़ना इतना दोस्ती छोड़ना इतना आसान नहीं होता, नंबर वन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल इन कांटेक्ट विद माय फ्रेंड्स ऑफ सेंट माइकल्स इवन, ठीक है, जो यहाँ से वो लेवल्स किया था, ठीक है। देख है नहीं, मेल अल्लाह का शुक्र कुछ छोड़ना फिर कुछ छोड़ना जरूरी है, कुछ छोड़ना जरूरी है।
It's not like free license. नहीं देखें, दोस्ती छोड़ना देखें इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्ती छोड़ना इतना आसान नहीं है, नंबर 1, ठीक है। इट्स नॉट ईजी कि अच्छा चलो मैं 10 साल पुराने दोस्त को छोड़ दूँ, कहना बहुत आसान है, ठीक है, अल्लाह की खातिर छोड़ दे, लेकिन इतना आसान नहीं है ये, ठीक है। यही ब्यूटी है ऑफ फ्रेंडशिप। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो द मेन थिंग वाज द फ्रेंडशिप दैट कनेक्टेड देम, ठीक है। तो लेकिन करें क्या? तो इस पे आई ऑलवेज फेल्ट कि बहुत बेनिफिशियल है और काफ़ी आई मीन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, मुझे भी और लोगों को भी, कि अगर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है दीन से दूर लेके जा रहे हैं, तो एक पैराडोल ले लो ना, अगर बुखार है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड बना लो, ठीक है, जो तुम्हें दीन से करीब लेके जा रहे हैं। उनके साथ तुम 4 दफ़ा हफ्ते में चाय पी रहे हो, तो इनके साथ 2 बार हफ्ते में चाय पी लो, ठीक है। एक एंटीडोट रखो, ठीक है। आप वायरस खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं ना, ठीक है, तो बस वैक्सीन की तरह एक नए एक गुड फ्रेंड। अच्छा, गुड फ्रेंड किसको कहते हैं? हर कोई पूछता है अच्छा दोस्त कौन है? जो नमाजें पढ़े। जो गुड फ्रेंड इज सिंपली दैट पर्सन जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाए। वो किसी तरीके से भी लेके जा सकता है, वो डिस्कशन से, वो इंटेलेक्ट से, वो अमल से, वो नमाज से, अल्लाह की तरफ जो लेके जाए। कीप दैट फ्रेंड, ये ज़रूर रखें। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि ऐसे दोस्त ज़रूर ढूंढें, और बिलीव मी ढूंढने से मिल जाते हैं। जो कहते हैं ना नहीं मिलते, मिल जाता है So आराम से। can I say that programs at Hikma Institute, even Naseeha or other institutes, जो weekend programs, beyonds, हाँ are a great opportunity of जी finding जी like-minded जी people जी where जी you can sort of become friends. बिल्कुल। That is the primary purpose of the short हम्म courses. And then you have like-minded people coming in, गपशप होना शुरू हो जाती है, and that sort of becomes your circuit. It's a happy place where you can hang out and I think a lot of times को बच्चा बयान पे आता है ना, so like he listens to a talk or he gets motivated, तो कहता है यार मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करो, like focus should not be on plugging out. हाँ शाहजेब कह रहा था focus should be on plug in. हम्म तो आप अगर 1-2 महीने सिर्फ एक टॉक पे ही आते रहोगे ना, and regularly आते रहोगे, that's more important than Exactly. thinking this कि I have to leave all those friends जो मैं आज सिर्फ जज्बात में आके कन्विंस हो गया तो छोड़ूंगा, क्योंकि फिर वो वैक्यूम में आप रहते नहीं हो, फिर वापस उसी सोबत में चले जाते हो। तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि किसी प्लग इन पे रेगुलर रहो रादर देन के प्लग आउट पे फोकस प्लग आउट पे फोकस the करो। third and last sort of fear that people have, I'll ask it to Moin, that मेरी दुनिया जो है ना फारिग हो जाएगी, यानी I will not have the best job, maybe I'll have to sort of I'll be rejected from certain interviews, मैं कुछ careers मुझे give up करने पड़ जाएंगे, and this one we know is by the way true as well, right? So how do people overcome this fear? Yeah, इसमें I think You after gave up being doing here CFA for level 1. after being here in ACF practical major, हाँ life, ACF मेजर CFA। like मुझे याद है मैं जब फाइनेंस कर रहा था पहली दफा इस्लामिक बैंकिंग डॉक्टर जीशान के साथ तारुफ हुआ और पहली दफा समझ आया कि यार सूद का कोई मसला भी है। तो वो आप कहाँ फाइनेंस करते करते CFA करते करते एकदम शिफ्ट हुए इकोनॉमिक्स की तरफ, एंड फिर आप आई थिंक प्रोफेशनली व्हाट लोगों के अंदर 2 गलतियां हैं। एक गलती है कि वो समझ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे मसले हल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे मसले हल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश सही डायरेक्शन में ना करो और सही असबाब के साथ ना करो और कंसिस्टेंटली ना करो और कहो जी कि अल्लाह कर देंगे। तो एक वो दीनदारों में गलतफहमी होती है कि जस्ट मी बीइंग अ गुड नमाजी मींस कि मेरी जॉब भी ठीक हो जाएगी। बाबा जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए, वो वाला पार्ट। हाँ, उसके साथ दुनियादारों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनका अल्लाह पे इतना भी तवक्कुल नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हराम कमाने वाले को भी रिस्क दे रहे हैं, ना मानने वाले को भी रिस्क दे रहे हैं, तो वो फिर दीन वाले को भी देंगे। तो शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे, क्लियर कट जहाँ पे आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो वो छोड़नी पड़ेगी, बट असबाब को सही तौर पर इख्तियार करने से अल्लाह ताला दरवाजे खोलते हैं, उसमें शायद वक्त लगे, अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रहा, वो दरवाजा खुलता जरूर है, बट वो कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए उसके लिए। ठीक है। शाहिद, you also briefly mentioned during one of the answers that mentorship program में जो आपको सवाल आए थे, can you tell us about what you guys have been doing in the mentorship program and sort of what was the takeaway for that, and also I would want क्या कहते हैं if you could highlight that, do you guys have initiatives for sisters in terms of programs or things that are happening, because I think our audience is sort of both the genders, so वो एक चीज़ अगर आप अच्छा, मेंटरशिप के अंदर देखें जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे मैं हो गया, खजर हो गया और भी लोग हो गए, सो स्टूडेंट्स टेंड टू कम अप, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स का अब हमें थोड़ा सा ये समझना है कि हमारी पोजीशन, आप लोगों की पोजीशन नसीहा में किस तरह थोड़ी डिफरेंट है, कि जब बच्चा अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, तो वो हमसे बयान नहीं सुनना चाहता, ठीक है। ही एक्चुअली वांट्स स्पेसिफिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसके पास डिफरेंट आ रहे थे, तो फिर ये थोड़ी जहन में यार थोड़ा सा इसको, जैसे हम वही बात आती है फिर मैनेजमेंट साइंसेज की, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में क्यों ना कर लें। अच्छा खजर, जो एडिक्शन के प्रॉब्लम्स है उसके अंदर तुम थोड़ा रिसर्च कर लो, और एडिक्शन वाले जो मसले तुम, अच्छा मॉरल रिफॉर्मेशन के जो मसले हैं वो लड़के मेरे पास आ जाएं, इस तरह थोड़े से करियर रिलेटेड जो मसले हैं, दीन दुनिया बैलेंस है, वो साद जाफरी के पास चले जाएं। तो ये हमने जब ये करा, तो इसको फिर हमने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया है, जिसको हम कहते हैं हिकमा मेंटरशिप सर्कल।
एंड वो जब हमने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया तो इवन दोज पीपल स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, जो वैसे बिल्कुल चुप थे क्लास में, या वैसे जनरली बिल्कुल चुप थे, तो ये बड़ा फायदा हुआ। एंड उसके बाद व्हेन दे गॉट टू नो कि यार स्पेसिफिक लोग यहाँ पे मौजूद हैं विद, जिसको इंडस्ट्री एक्सपर्टीज कहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज मौजूद हैं कि यार ये इसका मुझे मुझे पॉर्न एडिक्शन है, तो मुझे यार खजर भाई मुझे निकाल सकते हैं, ठीक है, इन गुड सेंस, इन गुड सेंस, नहीं जेन्युइनली इशू है, और जेन्युइनली माशाल्लाह खजर के थ्रू लड़के निकले इन चीज़ों से माशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक तो मेंटोरशिप से होगा। दूसरी बात आपने करी फॉर द सिस्टर्स, तो देखें बल्कि सिस्टर्स का ज़्यादा अच्छा और बड़ा काम है, अल ईमान इंस्टीट्यूट के नाम से इन कराची है, ठीक है, और दे हैव सम रियली गुड कैंपसेस, 2 कैंपसेस हैं, और वहाँ पे यही दावा कोर्स है, दरस निज़ामी, वर्कशॉप्स, उनके तो बहुत बहुत ही प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि माई आर वाइफ्स आर ऑल्सो, और थोड़ी सी कर लूँ ना, मैं वो भी शायद देख रही हूँ। But I think Iman, the great thing about Iman is I think that most of their programs are online as well. हाँ I ऑनलाइन भी है। have students at university who are doing sort of online that's Nizami from Iman and other courses. And, that's a tremendous effort. So I think, alhamdulillah, people should realize that all of this is, essentially Allah subhanahu wa ta'ala sending opportunities. It has nothing to do with any of us. ऑप्शंस आर अवेलेबल अरसलान, ये बताना हमने मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके पास। ब्लेसिंग अगर जी कोई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ढूंढना चाहे तो जहाँ बहुत सारी चीजें जो है ना इंसान को मिलती हैं और वो करती हैं। Okay, so one thing that I want to sort of ask all of you individually is this, that you've all had about a decade plus of journey now in terms of trying to consciously be on the deen. It's a struggle, obviously. Everybody is a work in progress. In that, okay, was there any time where you felt like giving it all up? Okay, for maybe whatever reason, that could be different, where you felt like that नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, शुरू में तो होता है, first 6 months are probably hard, but even when you've done that, maybe Shahzeb became Maulana Shahzeb, and then at one point he felt कि नहीं, what is all of this for, whether that's personal or in terms of work of deen, and if that happened, because I think it happens to a lot of people, how did you come out of it? I'm asking this because a lot of people think, yeah, if you're a speaker, if you're a Qari, if you're a Khatib, life is perfect. ये तो बहुत नेक है, इनका तो मसला ही कोई नहीं है, right? ये तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती हैं, सब कुछ है, ठीक है? So what is the inside story? अच्छा, एक तो बहुत पॉइंट आपने बिल्कुल सही कह दिया कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो स्पीकर्स हैं या बयान दे रहे हैं उनके साथ भी इश्यूज होते हैं। नहीं, इश्यूज होते हैं और उनके साथ ज़्यादा इश्यूज होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था दैट मूवीज़ का बहुत शौक था मुझे, सो आई स्टिल रिमेंबर, ये मुझे चेंज हुए हुए आई थिंक 1-2 साल हुए थे कुछ ऐसा। तो उस टाइम जब लम्स में थे ना, जब तक हम लोग लाहौर में, तब तक एक माहौल था सब। व्हेन वी केम बैक टू कराची, अरे यहाँ तो फैमिली में वैसा माहौल नहीं था, इवन एक्सटेंडेड फैमिली में वैसा माहौल नहीं था। तो आई स्टिल रिमेंबर कजन्स डिस्कशन ऑन न्यू मूवीज, न्यू एवरीथिंग। तो दैट टाइम एक पॉइंट ऐसा आया मेरे अंदर, मैंने कहा यार ये मैं कैसे वो चीज़ें छोड़ सकता हूँ जो मैं डेली करता था। मूवीज का मैं बिल्कुल क्रेजी फैन था। आई मीन आज स्टिल डार्क नाइट, हीथ लेजर, एंड क्या मूवी, आई मीन उस नहीं, आई एम स्टिल। तो ऐसी चीजें रिकॉल होती है ना विथ योर सराउंडिंग, जो मैं शुरू में कह रहा ना, एक ऐसा ग्रुप जरूर ढूंढें जो आपको अच्छी चीजें याद दिलाता रहे, क्योंकि जब उस चीज में दोबारा जाएंगे ना, तो वो जब अटैक करते हैं ना वापस, और वो बड़ा खतरनाक अटैक था, और मुझे लगा कि यार ये तो मैं निकल ही नहीं सकता, और मैं वो तो इतना मजा आता था, वीकेंड पे 7 अप रखी, चिप्स रखा, और भाई मूवी चल रही है, इट्स ऑल राइट, किसी को पता नहीं चलेगा, कमरा बंद करो, आराम से मूवी देखो, ठीक है। तो वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था, लेकिन वहां पे फिर क्या चीज काम आई, ऑब्वियसली दुआ, ठीक है, लेकिन आई थिंक द गुड कंपनी दैट यू कीप, द वैक्सीन दैट यू कीप, ठीक है, जिससे थोड़ा हार्ट टू हार्ट आप डिस्कस कर सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये जरूर हर बंदा अपने साथ एक ये वैक्सीन जरूर रखे। हाँ, I think it's very important. हाँ A lot of pious people also tend to fall down as soon as the sohbet changes. हाँ And it doesn't happen overnight, but ahista it gets to you. मेरे साथ, in all honesty, when I got done with Darsan Nizami, like exactly this reason, हम पूरा एक तरतीब होती थी ना, सुबह से शाम तक एक ही चीज़ पे हाँ कुछ चल रहा होता था, जब वो खत्म हुआ ना, तो एकदम से वो जो 8 घंटा 7 घंटा और डेली इन टाइम होता था, हदीस टाइम होता था, उससे जब हम निकले ना, तो एकदम से बंदा हिल जाता। क्योंकि होता ये था कि वो उसकी वजह से, इनकी तरतीब की वजह से नमाज़ें भी वक्त पे पाबंदगी से जमात के साथ हो रही थी, लोग भी ये थे, और टाइम इतना ऐसी जगह पे गुजारा होता था ना कि माहौल मदरसे का है, माहौल कोई गुनाह बदल है गया, नहीं। तो बाई डिफॉल्ट है, चाहो ना चाहो बाजमात नमाजी हो रही होती थी। फिर बाहर निकले तो फिर रियलाइज हुआ कि यार अब तो मेहनत भी करनी है काम करने के लिए, तो करने को तो बंदा कह सकता है, मदरसे से फारिग होकर इसके साथ ही हो गया। हाँ क्वाइट अ फ्यू किड्स हु वर विद मी, मोर देन 15-20, एवरीवन वाज गोइंग टू द सेम पाथ। और किस तरह मदरसे से निकलने के बाद हम अपनी बाकी मामलात को इसी तरह चलाएं और चलते रहे, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, I think that's also okay. When you come out of an intensive religious role, you should always sort of preempt के आगे जो है ना, it's not like ये रिश्ते खड़े हुए हैं, शैतान has sort of been waiting for you बिल्कुल कि ऐसे अब ही मैं इसको जो है ना जो रमजान में होता है ना, ईद वाले दिन कितना जबरदस्त शैतान आता है, वही होता है। मोइन। I think what gets to your nerves is कि हमें आमतौर पर ज़िंदगी में ना शॉर्ट टर्म फेजेस में अचीवमेंट सिखाई जाती है। आप ओ लेवल्स के लिए मेहनत करो, अब तो वो कहते हैं 3 महीने ठक रिजल्ट सामने आ गया, ए लेवल्स सामने आ गया, अंडरग्रेड सामने आ गया, देन यू गेट अ जॉब। दीन प्रॉब्लम होता है गेट्स योर नर्व्स कि आप वो दीन में आने के बाद, माहौल एक जैसा होने के बाद, दोस्त भी सारे चेंज होने के बावजूद, इट्स लाइक खत्म कब होना है, इट्स सो लॉन्ग। 10 साल गुजरने के बाद अपेरेंटली लगता है आसान हो जाता है, बट आई थिंक वो 10 साल के बाद जब आप आगे सोच रहे हो कि इट्स अ टायरलेस एफर्ट एंड यू डोंट गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज इनफैक्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाना कि मैं कर चुका हूँ, दैट्स मोर डेंजरस जी। तो मेरे ख्याल से ये तो कभी नहीं हुआ कि दीन बिल्कुल छोड़ के कहीं चले जाना है, बट आई थिंक ये जो अंदर है ना कि वो करते रहना है कब तक आखिरी सांस तक, दैट्स लाइक अ बिग बर्डन। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर। मोइन कोई अपनी चीज छुपाई है, मोइन ने कोई छुपाई है। सो जाहिर बात है उसके साथ इंडिविजुअल डिप्स हो सकते हैं, तो वो मोइन dips उसने share इंस्टेंस करना पूछा तो था मकसद नहीं कि भाई बताओ एग्जैक्ट स्टोरी को, मोइन छुपा रहा है, ये कंफर्म छुपा रहा है। मैं कह रहा था, हाँ सॉरी, बंदा जब लग रहा होता है ना दीन के काम में, तो वक्त के साथ ये जो दुनिया की भी चीज़ें ना, दे कीप अटैकिंग द पर्सन मोर एंड मोर ओवर टाइम। उससे होता ये है कि वक्त के साथ वो मजीद मुश्किल ही हो रहा होता है, आसान नहीं हो रहा होता। इवन तो कहने को तो बाय द लुक ऑफ इट आसान हो रहा होता है, बट क्योंकि प्रेशर्स बड़े होते हैं ना, उस हिसाब से इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। I don't know what specifically Islam क्या सुनना चाह रहा था, तो after offline जाके I can just discuss that again. Okay, so I think the last question that I'd sort of ask all of you is this: that if there is one advice that you would give to the youth today, okay, all of you one by one, keeping in mind the times that we're living in, okay, and the challenges that these kids now have, because they're very different to the challenges that we had. So, what would that one thing be? I'm going to start with Moin and then close on this side. Yeah, I think so क्या नहीं कर सकता मैं अपनी It's an जिंदगी में advice, not a bill. अभी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से नमाज 5 वक्त की नमाज, अगर आप जितने भी माहौल जिसमें माहौल हो 5 वक्त की नमाज के साथ जुड़े रहोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर का मामला करेगा। फाइंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहते हैं, बस ढूंढे ऐसा, कहीं से भी कुछ भी करके बस निकालें, कोई एक आध भी निकालें। नहीं मिल रहा तो दुआ करें, नहीं मिल रहा तो दो मिलेगा, यही तो एक मिसकंसेप्शन है कि कहाँ है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, अल्लाह ताला लाएंगे उसको आपके पास, ढूंढे जरूर। हिकमा के कोर्स में, यही मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ, हिकमा है, नसीहा है, मिलेंगे, Already available in the market. ऑप्शंस आर अवेलेबल माशाल्लाह। ना उम्मीद ना हो, this is what something with the kids do, they lose hope on Allah ताला। अल्लाह ताला तो हमारे साथ खड़ी नहीं है, अल्लाह ताला तो हमें गाइड ही नहीं कर रहा। नहीं नमाज पढ़ी जा रही, कोशिश करें, दुआ करें, ना उम्मीद ना हो, गुनाह में लगे हुए छूट नहीं रहा, कोशिश करें, इरादा करें, दुआ करें, ना उम्मीद ना हो, कुछ भी हो जाए ना, kids come to me, I tell them भाई कुछ भी हो रहा है, irrespective, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा, डोंट से यार बहुत अच्छा हो रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, बट अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं। इसकी कल की टॉक यही है, इसको रोक दें अब, वरना पूरी टॉक शुरू कर दें। I think It's a very good point, very, mashallah. great note to sort of end on that. The Quran also mentions that La taqnatu min रहमत, and this is true that one of the biggest problems today is कि हमारे बच्चे ना उम्मीद हो रहे हैं। and you look at them and they're such bright faces, such talented kids, and they have love for the deen, but somewhere somebody sort of convinced them that you don't have any scope in the deen. So those of you who are listening, brothers and sisters, should definitely sort of just remember this, that Allah subhanahu wa ta'ala loves each and every one of us, and He has a better plan for each and every one of us. That is why He sort of sent us to the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why He keeps giving us opportunities of care. Making mistakes is part of being human, and may Allah Ta'ala tremendously bless all of you for all the efforts that you've made, and may He sort of guide all of us and unite us on the Day of Judgment. Ameen, ameen. Jazakallah khair to all three of you for being such wonderful company today, and we hope that the audience that is listening from Karachi particularly, we see you on the conference tomorrow. Inshallah. Walaikum salam. ठीक, जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत शुक्रिया।